all these problems stem from the mistaken belief of the humankind that humankind is master of this planet and it has a right to exploit the resource to satisfy its insatiable lust for the comforts of life and the resource. Sir, humankind, a man is only a strand in the web of the life. And it cannot live away from the web of the life and use the resources only to enrich itself, enrich the humankind. Sir, on international front, we have not been able to negotiate a fair deal, a just deal. So what is being demanded by what is being demanded by the developed nations is that we should preserve resources for them. They have plundered resources. And now we should, third world countries and underdeveloped countries should, for their sake, for their well-being, we should now preserve our resources and not use resources. The fair deal would have been, as pointed out by earlier speaker, would have been to compensate the third world, compensate the underdeveloped countries for the preservation of the resources that we are now expected to preserve for them, which are already exploited and plundered by the West. So that has not been done. That is not being done. We at times are very happy that we are being labeled or we are being counted as the most developed nation, least realizing that by doing that, they want to just as deprive us of the terms of the deal that is expected to be negotiated. We cannot maintain our forests. We cannot leave our forests unexploited, our water resources unexploited, only because it helps them, because they have already done it in their countries as also the countries that they colonized. Sir, the first is that on the international front, right from Stockholm to Earth Summit to Brazil to Glasgow, we don't find that kind of a deal that we deserve, that not only India, other countries also deserve. Should maintain and make life comfortable for the people who have already exploited their resource. So this has been our one of our the fault lines. Second is that about this climate change and environmental, what is unique about them? These do not respect any political boundaries. Chernobyl continues to kill people away in forest. It is not that political boundaries will restrict the whatever is being done in a country. So these do not respect political boundaries or not even geographical boundaries. If resources are plundered in some country, if emissions are made in some country, that is going to affect some other country somewhere else. So my request would be that to help, because now our country has a major say in the world affairs, to help negotiate a just and fair deal for the third world countries. Second is that within the country, now in parliament, elsewhere, in seminars, symposia, we use very good language to emphasize the need to preserve our environment. But is it being domestically implemented on ground? We continue to exploit our water resources. We know how things have gone bad in Uttarakhand, how we have overexploited the water resources and how it has resulted in a calamity, it has resulted in a big problem in Uttarakhand. And same is being repeated in Chenab Valley. We are overexploiting water resources of Chenab Valley in Jammu and Kashmir. And that may, we should be very alive about it. That may also create a Uttarakhand-like situation in Chenab Valley of Jammu and Kashmir. Sir, the pollution control boards across the country have become pollution facilitating boards. The pollution control boards do not help in controlling the pollution, but they facilitate the pollution. That is the real experience that we have. Now in Jammu and Kashmir, all the ministers went on a pleasure trip
on sightseeing to Jammu and Kashmir this season. Dachigam, at the edge of the Dachigam, we have 7 cement factories. And I suspect they are manufacturing, producing produce more than the permitted. And the emissions made by the cement factories are directly impacting Dachigam National Park and the surrounding forest areas. Limestone mining is being done in conservation area. That is why we only believe in rhetoric. We say too many things, but on ground we are not implementing our own laws that are made by the parliament. So nobody seems to be worried about it. What is happening to Dachigam National Park is, and I believe that Honorable Minister must have also visited that, Dachigam, because that is the home to the only species of deer we have in the world. Right there. Hangul. Nobody's bothered. No. Just 2 minutes. So then, in 2020, tenders were invited to e-tendering when there was no internet, and millions of tons of sand has been removed from Pulwama, rivers of Pulwama, without any environmental clearance. Honorable Minister may check it. Whether any EC was granted to remove those the mineral minerals from the rivers of Pulwama, it was not done. So, sir, unless and until we just implement law domestically, internationally negotiate a better deal, but domestically we implement the law, make our institutions that are responsible for preservation of the environment, lowering down the emissions, we make those more responsive, more result-oriented, and duty-bound by the letter of law, we are not going to achieve the targets. Sir, there has to be a shift to sustainable development. We cannot eat up our resources. We are bound by intergenerational equities. We at least have a duty to pass on to the next generation our planet, our resources, at least in the same manner that we inherited in our preserves. That is not being respected. Yes. Neither domestically nor internationally. We have ended up now. I feel we third largest emissions are from carbon dioxide emissions are from India. We rank third. So all these concerns are to be, when we make a discussion on it, all these concerns are to be addressed. And I would request Honorable Minister to direct the concerned to go for auditing of the factories that were 20 years, 15 years back allowed to go for production of cement. Go for auditing, see whether they are adhering to the whatever parameters were prescribed in the permissions. Then only we'll be able to see it. Say about the Dal Lake. We had also pleasure to go to Dal Lake. It has become a septic tank. Again, because of urban runoffs, agricultural runoffs, urban runoffs, because we have not been able to preserve it the way we inherited it. So my effort would be, instead of only highlighting the problem, but also to practically do something to address the problem. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Sri Jayadam B. Appal ji. Jayadam B. Appal ji, Honorable Member. अधिष्ठाता महोदय, आपका धन्यवाद कि आज आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे, जिस पे न केवल हमारी चिंता है, इस सदन की चिंता है, बल्कि पूरे विश्व की चिंता है, क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, या बदलते हुए जिस तरीके से एक एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ रहा है, या कार्बन इमिशन को लेकर के कि हम कार्बन उत्सर्जन से लोगों के वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जहां एक तरफ हम उस वैश्विक चुनौती की बात करते हैं, यहाँ पूरे विश्व के सामने एक वैश्विक चुनौती इस क्लाइमेट चेंजेस के रूप में भी है। और अभी जो हमारा ग्लासगो में जिसका उल्लेख हो रहा है कि 26वां हमारी COP की बैठक हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी भी
श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया और हमारे श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी भी उस ग्लासगो के सम्मेलन में थे, क्योंकि आज वो जलवायु परिवर्तन केवल कोई इंडिविजुअल के लिए चुनौती नहीं है, पूरी मानवता के लिए चुनौती है। और आज इसको इस धरती पे, पृथ्वी पे सबसे बड़े खतरे के रूप में इस जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन से जो पृथ्वी के वायुमंडल हैं उस पे जो हमारे द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप हैं, चाहे वो ग्रीन हाउसेज की बात हो रही हो, उत्सर्जित जो कार्बन इमर्सन हो रहा है जीएससी, उसकी जो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग के जो भयावह परिणाम हैं, जिसके कारण आज पूरे एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल एटमॉस्फेयर में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जहां कभी सूखा नहीं आता था वहां भयंकर ड्रॉट आ रहा है, जहां पानी की कमी नहीं थी वहां पानी आ रहा है। तमिलनाडु में इस समय बरसात हो रही है, कभी आंध्रा में हो रही, महाराष्ट्र में हो रही। क्लाइमेट चेंजेज में जिस तरीके से ये संकट पैदा हो रहा है, तो इन परिस्थितियों पे आज उस 13 नवंबर को से जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई ग्लासगो में, और नवंबर में वहाँ पे पूरे देश के 197 देशों के लोग इकट्ठा थे, और वहाँ पे प्रधानमंत्री ने उस जो 5 सूत्र उन्होंने दिए पूरे विश्व के सामने, मैं कह सकता हूं कि कम से कम आज उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या क्लाइमेट चेंजेज की कॉन्फ्रेंस में आज वो प्रधानमंत्री ने केवल कार्बन उत्सर्जन के लिए, इस क्लाइमेट चेंजेज के लिए केवल उन्होंने 5 सूत्र नहीं दिए, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक दिशा देने का काम किया, जिसको सभी सदस्यों ने माना कि भारत की पहल को, प्रधानमंत्री की पहल को सराहा गया। और मैं कह सकता हूं कि भारत की गंभीरता इसी से है कि अभी नवंबर में ग्लासगो का सम्मेलन हो इस जलवायु के परिवर्तन को लेकर के, और दिसंबर में भारत की सर्वोच्च पार्लियामेंट का सत्र चल रहा हो, और भारत के सत्र में जहां विधायी कार्य हो, जहां हमें कानून बनाना हो, तमाम क्षेत्रों के माननीय सदस्यों के तमाम महत्वपूर्ण विषय हों, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार या हमारे स्पीकर साहब ने 193 पे आज जिस तरह से 2 दिन से पूरे इस क्लाइमेट चेंजेज पे 193 में चर्चा हो रही है, इसका पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि भारत गंभीर है और भारत पूरे देश के, दुनिया के लिए जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेज पे आज उस 2021 के जो 26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंजेज कॉन्फ्रेंस हुआ, COP26 जिसको डिक्लेरेशन कहा गया, जो स्कॉटलैंड में, और जिसमें 197 देश के लोग आए, उसमें हमारी क्या प्रतिबद्धता? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम नेट जीरो एमिशन करेंगे, मतलब हम कार्बन के उत्सर्जन को जीरो पे 2070 तक लाएंगे, और उसके लिए उन्होंने एक रोड मैप दिया, पूरी दुनिया के सामने दिया, और उन्होंने कहा कि हमारी 2030 तक की प्रतिबद्धता होगी कि हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को, उस फॉसिल एनर्जी को खत्म करके 50% का कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये निश्चित तौर से अपने आप में एक संकल्प है, एक प्रतिबद्धता है। जिस तरह से वहां पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंजेज पे IPCC ने जो एक औसत एवरेज टेम्परेचर की बात, क्योंकि किस लिए गंभीर है, आज इस जलवायु परिवर्तन पे जिस तरह से 1992 में सबसे पहले जो रियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहलाता है, और जिसको 1994 में लागू किया गया UNFCCC, और उसमें इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे पूरा एक वैश्विक सामूहिक प्रक्रिया एक साथ होगी। और आज भी वो रियो कन्वेंशन या रियो एग्रीमेंट पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में लिया जाता है, और उसमें भी 197 देश के लोगों ने भाग लिया, और वो जो सारी देश थे उसको कन्वेंशन के लिए पार्टीज के रूप में है, और उसकी एक वार्षिक बैठक हो रही लगातार, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार है। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, और उस क्योटो प्रोटोकॉल को भी 2005 में लागू किया, और उसमें 192 देशों के लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, जो क्योटो प्रोटोकॉल पे हुआ कि हम अपने GHG को, उत्सर्जन को कम करने में औद्योगिक और करेंगे, विकसित देशों को, अर्थव्यवस्थाओं को उसमें UNFCCC में लागू करेंगे। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं इस सदन में कि फिर जब पेरिस समझौता हुआ,
मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं 2015 में। और 2015 में पेरिस का समझौता हुआ। आज जैसे ये 26वां हुआ है, ग्लासगो में उस समय 21वां सीओपी था। और 21वें सीओपी में पहली बार जो 2016 में पेरिस समझौता लागू हुआ और 193 देशों के लोग थे अधिष्ठाता महोदय, उसमें पहली बार यह हुआ कि इस जलवायु परिवर्तन पे जो डेवलप्ड कंट्री है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं हो रही थी, केवल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिशा निर्देश इन पार्टी से आता था, इन कॉन्फ्रेंसेस से आता था। पहली बार ये तय हुआ और उसमें मोदी जी भी थे, प्रधानमंत्री भी हमारे थे। ये तय हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को इस जलवायु परिवर्तन के लिए कि इसके प्रतिकूल प्रभाव न हो, इसको अनुकूल बनाने के लिए विकासशील देश उचित वित्तीय सहायता देगा। एक निधि के गठन करने की बात की गई कि उस तरीके से एक गठन किया जाएगा और डेवलप्ड कंट्रीज देंगे। लेकिन आपको जान करके या पूरे विश्व को लगा कि पहली बार जब इस तरह का अगर पूरी दुनिया की इस चिंता को एड्रेस करने के लिए इस पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ, तो उस पेरिस के एग्रीमेंट के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति उससे अलग हो गए। जहां $100 बिलियन की निधि बनाने की बात हुई और अगर वाकई चिंता है मानवता के लिए तो उससे अलग हुए। और उस पेरिस समझौते के बाद अगर यूएस के तत्कालीन राष्ट्रपति या यूएस उससे अलग हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या भविष्य होगा। लेकिन मैं बधाई दूंगा कि उस पेरिस समझौतों की प्रतिबद्धताओं को इस धरती पर लागू करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू करने का काम किया। और आज उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह है कि जब हमारा 26वां ये सीओपी हो रहा है तो ये पहली बार फिर से वो प्रतिबद्धता की गई कि हम न केवल लागू करेंगे बल्कि अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दोनों मिलकर के इस तरीके से काम करेंगे कि हम आने वाले दिनों में हमारी निधियां भी बनेंगी। और वो जो पेरिस रूल बुक 2009 में बना था कि $100 बिलियन यूएस डॉलर जलवायु संबंधों के लिए निधियां स्थापित की जाएगी, और जो नहीं हुआ, आज ग्लासगो की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। माननीय मंत्री जी स्वयं विस्तार से बताएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि फिर से वो डेवलप्ड कंट्री ने प्रतिबद्धता की है, एग्रीमेंट में शामिल हुए हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फिर से वो $100 बिलियन हम यूएस डॉलर की हम एक निधि बनाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उस उपलब्धि के बाद आज फिर भारत है कि आज हम भारत की पार्लियामेंट में इसलिए इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आज जो हमने आईपीसीसी की बात की कि वो आईपीसीसी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंजेस है उसकी रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं कि जिस तरीके से इस क्लाइमेट चेंजेस से ग्लोबल एटमॉस्फेयर की ग्लोबल वार्मिंग से जो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरी दुनिया का एक जो तापमान बढ़ रहा है वो 1880 से लेकर 2012 तक 0.85 सेल्सियस बढ़ा था। लेकिन आज की क्या रिपोर्ट है कि आईपीसीसी की वही रिपोर्ट है कि वो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो जहां 1880 से लेकर 2019 तक केवल 0.85% था, वो आज 1850 से 19 को लेकर के 21वीं सदी के अंत तक 1.5% सेल्सियस हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर 0.85 पे जिस तरह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से पूरा एनवायरनमेंट एक चेंज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट हर कंट्रीज में आ रहा है। आए दिन आप टेलीविजन पे देखते हैं कि इस कंट्री में जिस तरह से फ्लड आ गया, अभी चाइना में देखा आपने, जिस तरीके से पेरिस में देखा और जगह सब जगहों पे, तो इसका पूरा असर आ रहा है। लेकिन आज हमारे उसमें एक तय हुआ है कि इस ग्लोबल टेम्परेचर को इस 2040 तक जो 1.5 बढ़ सकता है, उसके लिए एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका असर पड़ेगा, चाहे वो ग्लेशियर पिघले, चाहे वो क्लाउड बस्ट हो, चाहे ह्यूमन हेल्थ पे डायरेक्टली उसका इफेक्ट हो थ्रू राइजिंग टेम्परेचर हो, चाहे वो हीट वेव्स हो, चाहे फ्लड हो, चाहे वो ड्रॉट हो, सूखा हो। तो इस तरीके से जो आज आने वाली कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में काम करेंगे। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 5 बातें कही हैं ग्लासगो में, उन्होंने कहा इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030,
India will meet 50% of its energy needs from renewable sources. India will reduce at least 1 billion tons of total projected emissions between now and 2030. India will reduce the country carbon intensity to less than 45%. India will achieve a net zero emission target by 2020. तो इस तरीके की एक प्रतिबद्धता हम लेकर के आए। तो अब ये आज आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। आज ये नहीं है कि हमारे बिधुड़ी जी बोल रहे थे बिल्कुल ठीक कि अगर एयर पोल्यूशन होता है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ता है, चिंता का विषय है कि हैजार्डस है, तो क्या दिल्ली सरकार का केवल इतना दायित्व है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300, 375, 400, मोर देन 500 हो गया तो अब स्कूल बंद कर देंगे या आप केवल कंस्ट्रक्शन के वर्क बंद कर देंगे? ये आखिर इस उपाय से क्या दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट रोज दिल्ली सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दे कि आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? तो मुझे लगता है वो केवल ब्लेम गेम से कि फिर दिल्ली कह दे साहब पंजाब सरकार की पराली है, पंजाब कहे दिल्ली पे। तो ये मैं समझता हूं कि अगर इस सदन में 193 पे चर्चा हो रही है तो आज हमें चिंता करनी होगी कि अगर हम पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं, ग्लासगो पेरिस में हम नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं, तो भारत में भी सभी राज्यों को मिल करके आज हम इस पे क्लाइमेट चेंजेज पे हमको काम करना होगा। आज ये नहीं है कि हम 193 में चर्चा की शुरुआत करें काजी मोनी जी, लेकिन उनको देखना होगा कि आखिर तमिलनाडु में भी अगर थर्मल पावर के वहाँ के प्रोजेक्ट से अगर फ्लाई ऐसे रिवर्स में जाए, अभी तो हमने शुरू किया है अधिष्ठाता महोदय, जस्ट इट्स माय बिगिनिंग, अभी तो हम भूमिका बना रहे हैं, अभी तो हम विषय पे आए ही नहीं। तो मैं जी तो अगर उस तरीके से अगर होगा तो निश्चित तौर से उससे प्रदूषण बढ़ेगा। या बंगाल में जिस तरीके से हम जल्दी करेंगे, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हम को कर रहे हैं, 13 members from BJP party। आज आखिर हमने 2018 में हमने बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई। हम कोई पॉलिसी को लंबे से विस्तृत, क्योंकि आप समय दे नहीं रहे इसलिए मैं बायोफ्यूल की, क्लीन एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की पॉलिसी का मैं उल्लेख भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो क्यों इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आखिर हम कब चिंता करेंगे कि अगर हमने 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई तो आखिर हम क्यों नहीं इथेनॉल के प्लांट्स लगा रहे हैं, क्यों नहीं हम क्लीन एनर्जी के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं? तो ये निश्चित तौर से ये सदन इस बात का गवाह रहा है। ये सदन ने इतिहास दिया, इस सदन ने आज दुनिया को, विश्व को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा दिया है, प्रक्रिया दिया है। तो उस प्रक्रिया ढांचा में आज अगर ये सदन की 193 की आप एक दिन और चर्चा करा लें महोदय, मतलब नाउ यू कैन एक्सटेंड इवन दिस डिबेट फॉर ए डे ऑल्सो। आई थिंक सो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट, मतलब इट इज नॉट ए ओनली क्वेश्चन ऑफ ब्लेम गेम। अगर हम लोग कोई बात कह रहे हैं तो ये निश्चित तौर से आज भारत के भविष्य की पीढ़ियों को बचाने। थैंक यू मैं आपको करूंगा बिकॉज यू आर वेरी काइंड इनफ टू मी एंड यू आर गिविंग मी टाइम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी मैं फाइनल पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है? तो निश्चित तौर से आखिर आज अगर हमने ग्लासगो में बात किया कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, और उसको अगर हमने स्वीकार किया है तो आखिर इस क्लाइमेट को हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कैसे बनाएं? मैं तो यही अपील करूंगा पूरे सदन से कि ये हमारा जो एक क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट को हम इस तरह से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएं कि हमारी आने वाली जनरेशन इस बात के लिए प्राउड फील करें कि मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे, भूपेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं कि इस सदन ने इस गंभीरता से चर्चा करके कम से कम जो यहाँ से ये कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई नहीं, लेकिन सारे सदन ने जो एक संदेश दिया उसको पूरे भारत ने, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे कार्बन उत्सर्जन हो, उस दिशा को ठीक करने के लिए जिस तरह से एक गया संदेश वो है। और हम कब कर सकते हैं? अगर विश्व जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने पुराने लक्ष्यों को भी अचीव करना चाहें और जो हमने इस COP 26 में किया है उसको भी अगर हम आगे करना चाहें तो वो हम तभी कर सकते हैं जब इसमें कुछ हमारा वित्त पोषण हो। अब इस तरीके से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सी बातें हैं, मैं बहुत सी बातें तो आपसे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी बातें कह के अपनी ख़त्म करना होगा
कि कम से कम जो क्लाइमेट चेंजेज है इंटेंसिफाइंग द वाटर साइकिल एंड दिस ब्रिंग्स मोर इंटेंस रेनफॉल एंड एसोसिएटेड फ्लडिंग आल्सो एज वेल एज मोर इंटेंस ड्रॉट इन मेनी रीजन्स. दिस इज द सीरियस इशू Yes. which I am raising. This is not only my concern, it is concern of the whole house. तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स ऑल्सो, चेंजेस टू मानसून and which will be very by region and coastal areas will see continued sea level rise. आपने देखा होगा. Therefore आप भी you are from Kerala, तो certainly you are also affected. तो मैं आप ही की बात उठा रहा हूँ कि इस तरीके से जो कोस्टल एरिया है जहाँ पे इतना फ्लड आ रहा है, लो लाइंग एरियाज में कोस्टल एरोजन्स हो रहा है, ये कम से कम हमने हमारे पास जो कोस्टल का है ठीक कहा. और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि हमारा कोस्टल लाइन 7,500 किलोमीटर है. और अगर हमको पॉल्यूशन या इससे क्लाइमेट चेंजेस वजह, मैं एक बात कह दूं, मैं तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का उल्लेख करना चाहता हूं कि शायद उनके पास भी एक उपाय है, जरूर इस सदन में उनको हिस्सा लेना चाहिए कि एक रात चांद के साथ कि सारी लाइट बंद करें, सारी चीजें, हम मून लाइट में छत पे बैठें, मून लाइट पे ही हम खाना बनाएं, मून लाइट पे रहें. तो आखिर ये उपाय हम क्यों अपने, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, तो हम क्यों अपने आप नहीं शुरू कर सकते? और अगर ये सदन तय कर लेगा तो निश्चित भारत विश्व में सबसे अग्रणी होगा इस क्लाइमेट चेंजेस के. थैंक यू. धन्यवाद. Honorable Member Sri Benny Behana. Chairman, first of all, I would personally like to